ये ITC क्या कह रहा है? The world generated over 181 zettabytes of data in 2025 and the number is expected to reach 210 zettabytes by 2026. So data is just not a number but a never-ending gold mine. इसलिए data analyst and data scientist दोनों ही आपकी करियर ग्रोथ के लिए एक्सीलेंट ऑप्शन है। As per World Economic Forum, data science दुनिया की टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर में से एक है। एंड अकॉर्डिंग टू द लिंक्डइन वर्कफोर्स रिपोर्ट 2025, ग्लोबल लेवल पे 1 मिलियन से भी ज्यादा ओपन डेटा रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल है। सिर्फ इंडिया में ही 2 लाख से ज्यादा स्किल प्रोफेशनल की शॉर्टेज है। और इतना ही नहीं, IT सेक्टर हर साल लगभग 36% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। लेकिन स्किल प्रोफेशनल की भी शॉर्टेज अभी एक मेजर चैलेंज है। सोच के देखिए, अब डिमांड इतनी हाई हो और एक्सपर्ट्स इतने कम, तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए कितनी बड़ी हो सकती है। हेलो फ्यूचर एनालिस्ट, माय नेम इज झलक एंड आई एम हियर विद माय को-होस्ट वान्या एंड छाया। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट विल बी द रोड मैप और स्टेप्स टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट इन 2026। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज कॉमन क्वेश्चंस specially asked by a student. What degree do you need to become a data analyst or data scientist? What salary can freshers or data analysts can expect? Will AI replace the job of a data analyst? Where should I start? What should I learn and how much time will it take? Will I get a job after learning everything? So all these questions will be answered using real market data, authentic industry reports and reviewed by a senior data scientist who has 18 years of industrial experience in EY, Accenture, American Express, lot of good IT brands and has also trained 7,000 plus students and professionals. The first and the most important question, what degree do you need to become a data analyst? According to IBM's Global Skill Report 2025, nearly 70% of entry-level data analysts now prioritize practical skills over degrees. That means if you graduate, you are eligible for 60% of these roles. And even if you don't hold a formal degree, you can still qualify for nearly 20% of data analyst job. As long as you have strong skills in Excel, Power BI, SQL, and Tab and Python. In fact, 70% of data analysts are coming from non-technical background. But the truth is, companies now focus on skill more than a degree. So even if you are from a non-technical field, by learning the right tools and gaining hands-on experience, you can confidently begin your journey as a data analyst. The second question is, what salary can freshers and data analysts expect? As per Glassdoor, Ambition Box, and LinkedIn Salary Insights, whether it is on-campus placement or off-campus placement, the salary varies based on several factors. In on-campus placement, if you have done your graduation from very good college and getting a placement from there, people are getting packaged up to 35 LPA. In off-campus placement, it depends, usually ranging between 4 to 10 LPA. But mostly, you will find placements averaging between 4 to 6 LPA. Within 2 years of placement, the package can rise up to 15 LPA. And within 3 years, it can goes up to 25 LPA. इतना ही नहीं, ग्लोबली भी डिमांड मैसिव है। और अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो ये डेटा 60 लाख टू 1.3 करोड़ तक जाता है। अगर आप फाइनेंस, हेल्थ केयर या बैंकिंग जैसे किसी स्पेसिफिक डोमेन में वर्क कर रहे हो या आप मशीन लर्निंग और एडवांस एनालिटिक्स जैसे स्किल सीख लेते हो, तो आप इंडिया में इजीली डेटा साइंटिस्ट की प्रोफाइल में ट्रांजिशन करके 40+ LPA तक कमा सकते हो। Let's address a common question that everyone wants to know. Will AI replace the data analyst? देखो, ये डर तो सबके मन में होता है और ऐसे कंफ्यूजन टाइम टू टाइम होते रहते हैं। पहले भी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो लोगों को लगा था कि मशीन्स के आने से जॉब चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुए और भी ज्यादा फैक्ट्रीज खुली। आज के टाइम पर भी नंबर ऑफ लेबर्स की जरूरत पहले से ज्यादा। बिल्कुल इसी तरह डेटा साइंस के आने से भी और भी इन्वेस्टमेंट हो। अगर पिछले 20 सालों का डेटा देखा जाए तो वर्ल्ड में सैलरी अर्न करने वाले लोगों की संख्या हर साल बढ़ी। 2010 में जितना लोग सैलरी ले रहे थे, 2015 में लोग उससे ज्यादा सैलरी ले रहे हैं और 2020 में उससे भी ज्यादा। मतलब एम्प्लॉयमेंट कभी कम नहीं होगा और जितना पैसा सैलरी के रूप में दिया जाता है वो हमेशा बढ़ता ही। कभी किसी फील्ड में बूम आता है और कभी किसी और फील्ड। अभी तो AI की फील्ड में बूम चल रहा है और इस बूम की वजह से डेटा साइंस की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। अब लोगों को समझ आने लगा है कि डेटा कितना पावरफुल है, ये सच में वंडर्स कर सकता है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सब अपना डायरेक्शन ठीक कर रही है। डेटा और AI की हेल्प से कंपनीज बेटर डिसीजन ले पाए और फास्टर ग्रो करती। AI
कभी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि उन्हें बेटर डिसीजन लेने में मदद करेगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन तेज तरक्की करेगी। और जब कोई चीज ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है, नेचुरली उस चीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी तो लोग एम्प्लॉय तो होंगे ही। तो हाँ, अगर आप एआई के साथ अडॉप्ट नहीं करोगे तो फिर स्ट्रगल ही कर। तो डोंट फियर एआई, यूज इट, मास्टर इट एंड मेक इट योर सुपर पावर। तो चलो अब समझ लिए कि एआई से डरना नहीं है, उसे अडॉप्ट करना है। तो अगला सवाल क्या होना चाहिए? कहाँ से स्टार्ट करना है? व्हाट टू लर्न? हाउ मच टाइम इट विल टेक? हाँ, वही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर रोड मैप और 5 फेसेस। तो लेट्स बिगिन विद फेज 1, द फाउंडेशन फेज। इस फेज पे सबसे पहले फोकस करेंगे बेसिक्स पर, जैसे एडवांस एक्सेल। यहाँ आपको मास्टर करना है फंक्शन, चार्ट, डैशबोर्ड्स, VLOOKUP एंड पिवट टेबल। वंस यू आर कंफर्टेबल विद दैट, मूव टुवर्ड्स बेसिक मैथ, जिसमें कवर करने हैं टॉपिक्स जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, सैम्पलिंग एंड क्लस्टरिंग। एक्सेल एंड मैथ, ये दोनों मिलकर आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएंगे, जिससे आपको नेक्स्ट फेज समझने में और अप्लाई करने में ज्यादा मदद। फेज 2, टूल्स एंड प्रोग्रामिंग। SQL इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि ज्यादातर डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है। यहाँ आपको मास्टर करना है जॉइन, एग्रीगेशन, सब क्वेरीज, इंडेक्सिंग, नेस्टेड क्वेरीज, फंक्शन, परफॉर्मेंस टर्निंग ऑफ क्वेरी एंड फाइनली पाइथन बेसिक। इतना जरूर सीखो कि आप NumPy एंड पांडा जैसी लाइब्रेरीज easily handle कर। Remember, handling and transforming data using SQL and Python are the backbone of data। अगर इन दोनों में आपकी strong grip है, तो आपकी placement range और career growth दोनों में solid hike मिल सकती है। Phase 3, visualization and insights phase। तो इस phase में आपको सीखना है data को visualize करना और effectively explain करना। So यहाँ focus होगा 2 main चीजों पर, visualization tool and storytelling skills। Business visualization tool जैसे Power BI and Tab, क्योंकि ये tool real world projects और डैशबोर्ड के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इन टैबलू फोकस करो इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स, ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस, एडवांस एनालिटिक्स, मैपिंग कैपेबिलिटी। देन मूव टू पावर BI, जहां आपको मास्टर्स करना है डेटा कनेक्टिविटी, डेटा मॉडलिंग, टैक्स लैंग्वेज, कोलैबोरेशन एंड शेयर। इस फेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिस। अपने खुद के डैशबोर्ड्स बनाओ और उसके पीछे की खुद की स्टोरी टेलिंग। सिर्फ नंबर से स्टैट्स बताना काफी नहीं है, डेटा के इनसाइट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है रियल स्किल। यू कैन लर्न विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइथन विद मैटप्रॉब्लम एंड सीबॉर्न। ये पाइथन लाइब्रेरीज आपको ग्राफ एंड विजुअल इनसाइट्स क्रिएट करने में हेल्प करेगी, बट दिस इज ऑप्शनल फॉर स्टार्टिंग योर करियर। अगर आप ये सब नहीं भी बनाओगे तो भी चले। फेज 4, प्रोजेक्ट एंड पोर्टफोलियो फेज। अब जब आपको सारे टूल्स समझ आ गए हैं, तो थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। इस फेज पे फोकस करो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ जहां आप एंड टू एंड एज अ डेटा एनालिस्ट अप्लाई कर सकते, फ्रॉम डेटा क्लीनिंग टू डेटा विजुअलाइजेशन। साथ ही अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करो, ये आपकी स्किल्स का लाइव प्रूफ होता है। पोर्टफोलियो बनाते वक्त क्लियरली मेंशन करो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, हाउ वाज द डेटा, व्हाट एनालिस्ट डिड यू डू एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली What insights did you get? ये पोर्टफोलियो आपके रिक्रूटर्स को कन्विंस करेंगे। आप सिर्फ टूल्स ही नहीं सीखते हो, बल्कि रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर काम करना भी सीखते हो। फेज 5, जॉब प्रिपरेशन एंड इंटरव्यू। इस फेज पे आपको फोकस करना होगा प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि रिक्रूटर आपको नोटिस करेगा या नहीं। स्टार्ट विद पॉलिशिंग योर रिज्यूमे। Make sure it highlights your skill, tools and real world projects clearly. Next, optimize your LinkedIn and job profile like Naukri or other platforms, and professional summary, showcase your projects and stay active. Recruiters often notice consistent learn. Then move to interview preparation. Practice those common and scenario-based questions जो mostly interviews में पूछे जाते हैं। और सबसे important, सीखो अपने projects को effectively represent, क्योंकि वही आपका biggest selling point होगा। Interviews देखना चाहते हैं कि आपने data के through problem solve कैसे किया और insights कैसे निकाले। Now that's the complete roadmap। और अगर आप ये skills अच्छे से master कर जाते हो, तो आप बन जाते हो जॉब रेडी इन जस्ट 7 to 8 months. Now let's answer the most important question. Will I get job after learning everything? So the answer of the question is a big yes. You will definitely get the job. ऐसा हो ही नहीं सकता इस फील्ड में प्रॉपर कैंडिडेट जिसने प्रॉपर प्रिपेयर किया हो और उसे जॉब ना मिले। इनफैक्ट फ्रेशर्स कैन ग्रैब 3 to 5 ऑफर्स बिकॉज डिमांड बहुत हाई है। जस्ट मेक श्योर कि आप पढ़ाई के नाम पे कहीं बिलो ट्रैप में तो नहीं फंसे हुए हैं। जैसे पे गैप, अकॉर्डिंग टू NASSCOM एंड इंडिया स्किल रिपोर्ट, इंडिया में ओनली 20 to 25% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास वो स्किल्स है जो इंडस्ट्री को चाहिए। बाकी 80% ऑफ द लोगों के पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो है बट प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है।
सेकेंड इज लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स एंड डोमेन नॉलेज। कई लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज तो होती है बट वो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन में वीक पड़ जाते हैं, जो इंटरव्यू में बहुत मैटर करता है। थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लैक ऑफ एफर्ट। आज के टाइम में जॉब तो सबको चाहिए बट एफर्ट्स कोई नहीं करना चाहता। सबको एक रटा हुआ स्क्रिप्ट चाहिए जिसे पढ़कर जॉब मिल जाए, बट रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। इन्हीं रीजंस की वजह से बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं जॉब लेने में। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग हायर? द फर्स्ट स्टेप इज रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराना। Here's how. Listen to experienced people and try freelancing and internship as a fresher. Mention your projects clearly in your resume along with tools and certification. You should see yourself well because you should sound like a solution of recruiters' problem. Regular update and polish your resume. Add your portfolio link because it is your proof of work. The second point arises, want to clear the interview. Work on your communication and presentation skills. Learn how to represent your data and projects effectively. Strengthen your technical and negotiation skill because end of the day skills plus communication plus consistency is equal to job ready. तो अब आपने ना ये सिर्फ स्किल सीखी है बट अप्लाई भी किया है एंड आई एम प्रीटी श्योर if you follow this roadmap your chance of getting hired will only increase day by day. तो अगर आप confused हो कि आपकी प्रोफाइल अलग है तो let's connect with our lead faculty who has 18 years of experience and he is a senior data scientist on a free live webinar to get guidance based on your profile. Till then, keep learning, keep growing.